Hello बच्चों, let's do exercise 4.4 class 10th question number 1. Question number 1 is find the roots of the following if the real roots exist and find them. Okay, if the rule that means if the root exists then find them. The first is how would we know that the real root exists or not? Okay, that can be found with the help of discriminant. We have already studied about this in previous exercises too, so I'll not explain it much. You already know that the value of discriminant is b square minus 4ac, and what is b here? B is the coefficient with x term, and a is the coefficient with x square term, and c is the constant term. Okay, now on the value of discriminant depends whether the roots have real or imaginary or equal. Okay, if you see that the value of b square minus 4ac is greater than 0, that means that that quadratic equation will have two different roots. Okay, and we will find them. And if you see that b square minus 4ac, the value of b square minus 4ac is equal to 0, that means that quadratic equation have two equal roots. And if you see that b square minus 4ac is less than 0, then we can conclude that that quadratic equation will not have any roots, or that will have a imaginary roots. Okay, so let us now find whether the given equations have which type of roots these following quadratic equation have, and if they have roots then how we will find that. Okay, now let us see here. If we do the comparison with this general term, from here we can conclude that, okay, you have to compare this with ax square plus bx plus c is equal to 0. From here you can see that a is equal to 2, okay, and b is equal to minus 3, and c is equal to 5. Okay, now we have to find the discriminant. So d is, what is the value? That is b square minus 4ac. Just put these values here. You can see that b value of b is minus 3, so minus 3 square into 4 into a is 2, into c is 5. So 3 3s are 9, minus 4 2s are 8, 5s are 40, and which is equal to minus 31. From here you can conclude that minus 31 is 0, then is less than 0. That means this quadratic equation will have no root, or this equation have imaginary roots. Okay, this equation have imaginary roots. So because they have asked you to solve only if real root exists. Okay, and here from here by this value we concludes that roots do not exist, or the roots are imaginary. Because roots are imaginary, so we cannot find them, and we have not asked to find them. Okay, now let us move toward the second part. First step is to find whether the roots exist or not. पहले हमने ये देखना है कि इनके जो रूट्स हैं वो हैं या नहीं हैं. ठीक है, उसके लिए तीनों कंडीशंस क्या हैं वो मैंने अभी एक्सप्लेन करी. तो फिर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, a जो है वो 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट होता है वो a है, b है आपके पास -4√3, और c है आपके पास 4. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब b स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ b, -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपके पास 3 और c है आपके पास 4. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, -4 इंटू -4, दैट विल बी 16. ठीक है, √3 स्क्वायर, रूट विल कैंसिल विद रूट एंड यू लेफ्ट विद 16 3s minus 4 3s 12, 4s 48. Okay, so from here you can conclude 16 3s 48 minus 48 which is equal to 0. तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 है. तो देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स आर, क्योंकि आपने यहीं पे पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो डिफरेंट रूट्स होंगे.
टू डिफरेंट रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो टू इक्वल रूट्स होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो नो रूट्स होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल टू 0, तो ये इसका मतलब है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट विल हैव टू इक्वल रूट्स। क्योंकि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट्स, रियल रूट्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि अब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब हम लोगों को रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब इसके भी आगे दो मेथड है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए या फिर सिंपल जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म से करिए। तो पहले देखिए 4 3s सो 3 4s 12, आपको चाहिए 12, मल्टीप्लाई करने से 12 होना चाहिए और प्लस और माइनस करने से 4√3 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 12 को करें तो यहाँ पे क्या आता है, 2√3 आता है। ठीक है, 12 को लिख सकते हो ना, 2 2 4√3। अब यहाँ पे 2√3, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर मैं क्या करूँ, 12 चाहिए आपको और यहाँ पे 2√3 है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए और प्लस माइनस करने पर -4√3 चाहिए। तो व्हाट इज देयर एनी ऑप्शन हेयर, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है यहाँ पे? तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, मुझे दिख रहा है, तो मैं अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, टू फाइंड द रूट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस और रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज -4√3। ओके, फिर आगे प्लस माइनस और d आपके पास ऑलरेडी दिया है कि d जो है, d की वैल्यू हमारे पास 0 आई है तो उसको आप 0 लिख लीजिए, अपॉन 2a कितना है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास 3, तो वहाँ पे लिख लीजिए 3। अब ये तो 0 है, प्लस माइनस 0, तो इसकी तो कोई वैल्यू आगे रहेगी नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो एक आ गया प्लस 4√3 अपॉन 6 प्लस -0। अब दो वैल्यूज होंगी, एक प्लस की 0 और एक माइनस की 0, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही आ रही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो एक फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू वट 4√3 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, क्योंकि पहले ही हम लोगों को पता लग चुका है कि दोनों की रूट्स जो हैं वो इक्वल ही आएंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल ही आएंगे। इसको अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो 2 3 6, 2 2 4, तो 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2√3 अपॉन 3 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2√3 अपॉन 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूट्स यहाँ पे आ गए। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहला स्टेप यही है कि देखना है हम लोगों ने कि पहले ये रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले वैल्यूज़ क्या क्या हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। तो a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे -6 है और c यहाँ पे 3 है, राइट। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट कितने की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, b² - 4ac। अब डालिए वैल्यूज, b² मतलब -6² - 4 इंटू a आपके पास 2 है और c आपके पास 3 है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 36 - 4 2 8 3 कितना हो गया 24। ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू कितना हुआ, 6 में से 4 लेस करें मतलब 12 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब इसके 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब उन दो रियल रूट्स को आप फाइंड आउट करिए, तो हमको देखिए 2 3 6। ठीक है, तो प्लस माइनस करके आपके पास मल्टीप्लाई करके 6 होना चाहिए और प्लस माइनस करके 6, तो हम
यहाँ पे सिंपल स्प्लिटिंग मेथड से थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम लोग इसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस बी, नॉट माइनस बी बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो भर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी, b इज इक्वल टू -6 है, तो एक और माइनस ऑलरेडी बाहर है, b के साथ भी आपके पास -6 है, प्लस माइनस रूट कितना आया है, 12 आया है, 12 आया है ना ऑलरेडी। हम तो इसको यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि b स्क्वायर माइनस 4ac फिर से करने लग पड़े। तो 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 2, तो हो जाएगा 4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, एक वैल्यू ये जो प्लस के साथ होगी, एंड x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू जो नेगेटिव के साथ होगी, तो 6 माइनस रूट 12 अपॉन वट 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हो रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस अभी हमने पीछे क्या था, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 रूट 3 लिख सकते हो अपॉन 4, और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने और सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 को बाहर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का भी फिर से यहाँ पे भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 और अंदर आपके पास रहेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन वट 4। अब यहाँ से आप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर सकते हो, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना बचता है, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, फिर रूट 3 बाहर लेके आप 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी करते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो विद दिस वे हमने इनके दोनों रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स निकाल लिए।